students, now I am going to start the next topic in chapter 11, class 12, that is preparation of alcohol, that how we can prepare alcohol. So for the preparation of alcohol, here we have three ways. First one is by catalyzed hydration. Second one is by hydroboration, oxidation. Third one is reduction of carbonyl compound. And the last is from Grignard reagent. There are here you thought that there are four ways, but I have tell you three. No, these two are same, of course. This is second and this is third. These two are same. Same in the sense that if we want to prepare alcohol from symmetrical alkene, this method is best. What do you mean by symmetrical alkene? Means दोनों साइड, alkene मतलब डबल बॉन्ड, दोनों साइड जो कार्बन चेन होगी वो सेम होनी चाहिए. दोनों साइड कार्बन चेन जो है वो सेम होनी चाहिए, दैट इज एल्कीन. यहाँ पे सिमेट्रिकल है. अगर यहाँ पे अगर 3 होता, ये 2 होता, दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन. उस केस में हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यूज कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द बेस्ट और ईजियर मेथड टू डू द हाइड्रोबोरेशन for unsymmetrical alkene. But for symmetrical alkene we use this method by catalyzed hydration, which is best for the symmetrical alkene. And so this is the first point, how we prepare alcohol. The second point is from carbonyl compounds. Carbonyl compound means aldehyde, ketone or carboxylic acid, or you can say ether also. These are the carbonyl compound. Mainly carbonyl compounds are ketone and aldehyde or carboxylic acid. So reduction of these compounds gives alcohol. And the third one is Grignard reagent. Grignard reagent is RMgX. Here you are thinking what is R? R is alkyl and X is halogen atom. R like suppose CH3MgCl, CH3MgBr. So this is the Grignard reagent. So first of all we are going to discuss about catalyzed hydration. Now we are going to discuss about how we prepare alcohol by catalyzed hydration, acid catalyzed hydration. What is this? Acid catalyzed. In the presence of acid, we are going to make alcohol. So what we have taken alkene, here symmetrical alkene. Suppose we have taken this is our alkene. In the presence of water or acid catalyzed reaction means in the presence of hydrolysis, in the presence of acid. Acid catalyzed hydrolysis means in the hydrolysis in the presence of acid. So what is H2O? It is H positive, OH negative. So we have discussed Markovnikov rule in class 11th. According to Markovnikov rule, negative part attached to that carbon which has less number of hydrogen. So less number, अगर suppose यहाँ पे 3 होता तो less alkene की तरह से लिखते हैं, less number of hydrogen इधर है तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ अटैच होता. बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है दोनों साइड सेम है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहीं भी अटैच हो सकता है, चाहे आप यहाँ अटैच कर लें चाहे यहाँ पर अटैच कर लें, बिकॉज यहाँ पे जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों साइड एक ही है. अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ अटैच होता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिक रूल नेगेटिव पार्ट अटैच टू दैट साइड विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये इस टाइप अटैच होता. अगर यहाँ पे 2 होता बट दोनों साइड सेम है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहीं भी अटैच हो सकता है. सो CH3CH हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ अटैच किया है. सो बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से, एक बॉन्ड ये वाला बॉन्ड जो होता है ब्रेक हो जाएगा और
उससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएगा और CH3। अब आप पूछेंगे ये हाइड्रोजन कहाँ गया, ये इस साइड अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 की जगह 2 हो जाएगा एंड दिस इज आवर अल्कोहल और प्लस वाटर। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ alcohol from symmetrical alkene by acid catalyzed hydration in the presence of hydrolysis in the presence of acid. We get alcohol. अब now we are going to discuss about its mechanism, कैसे ये बना, तो that I am going to discuss. Now I am going to discuss about the mechanism. Here is first point is protonation of alkene to give carbocation. Suppose we take water. We have discussed that doing the hydrolysis of alkene in the presence of acid. So there we have taken water. So first of all, addition of hydrogen ion in water gives here there is 2 hydrogen, that is 2, and now this hydrogen, there is a presence of 2 lone pair now. This hydrogen will attach to take this lone pair and attached here. It will become H3O positive. H2O, H positive gives H3O positive. So अब now this will attach to alkene. So first point is protonation of alkene to give कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन गिव करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोटोनेशन करेंगे। ये H3O पॉजिटिव जो जब हमारा एल्कीन से अटैच करेगा, सपोज दिस इज एल्कीन, इसमें हम जो है प्रोटोनेशन करेंगे, दैट इज प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। दिस इज आर एल्कीन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच है, इट इज अंडरस्टूड। प्रोटोनेशन करेंगे, H3O पॉजिटिव अटैच होगा। H3O पॉजिटिव मीन्स दिस, ये अटैच होगा, तो व्हाट वी गेट, H3O पॉजिटिव में H पॉजिटिव यहाँ अटैच हो जाएगा। ये जो H पॉजिटिव है एक, इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये स्ट्रक्चर आएगा, एक H पॉजिटिव इस पे अटैच हो जाएगा, किधर भी अकॉर्डिंग टू मार्कोवनी रूल दैट आई हैव डिस्कस्ड। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, तो चाहे आप इधर अटैच करिए हाइड्रोजन, चाहे इस साइड। तो इफ़ आई हैव अटैच ऑक्सीजन हेयर, सो व्हाट वी गेट, देयर इज 2HCH, यहाँ पे ऑलरेडी 2 थे, एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बिकॉज ये बॉन्ड जो उसने हाइड्रोजन को दे दिया गया, अब यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा। द सेकेंड इज C और ये H पॉजिटिव। वाई वी हैव पुट पॉजिटिव हेयर, बिकॉज ये 2 हाइड्रोजन तो यहाँ अटैच हो गए, बट आप देखिए एक बॉन्ड है कार्बन के पास, दूसरा बॉन्ड है और तीसरा बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि H इसके पास चला गया, बाकी ये वाटर बचेगा जो कि ऐसे ही रह जाएगा, अपना सेपरेट हो गया। इसने अपना लोन पेयर ले लिया और हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। जो रिमूव हुआ हाइड्रोजन हुआ वो यहाँ पे अल्कीन से अटैच हो गया, उसने कार्बोकेटाइन बना दिए। ये हम एक्सपैंड कर देते हैं, 3 हाइड्रोजन बना लिए और दूसरे वाले कार्बन के पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन रहे और एक बॉन्ड मिसिंग है, इसने यहाँ पे पॉजिटिव साइन, बिकॉज इसको अभी एक बॉन्ड चाहिए, इट हैज़ डिफिशिएंसी ऑफ 1 लोन पेयर। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव लगा दिया और ये वाटर रिमूव हो गया। दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। नाउ सेकेंड मैकेनिज्म, सेकेंड वन इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन, जो कि हमने फर्स्ट स्टेप पे बनाया था। ऐसा कुछ कंपाउंड था, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे थे और यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन थे और एक पॉजिटिव साइन था। न्यूक्लियोफिलिक मीन्स जिसके पास लोन पेयर हों, हाइड्रोजन है एक,
यहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। दिस इज अ हाइड्रोजन, 2 लोन पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे। न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ये जो हमारा HOH बॉन्ड है वो इस पे अटैच हो जाएगा। कैसे देखते हैं। ये हमारा 3 हाइड्रोजन, एक C बॉन्ड जिसके पास 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी हैं। ये O जो होगा अटैच होगा कार्बन से, अपने कार्बन के पास हाइड्रोजन से नहीं अटैच होगा, ये ऑक्सीजन से होगा। वाई? बिकॉज ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ना कि हाइड्रोजन के पास। सो 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास है, तो ये H, एक H यहाँ गया और एक H इस साइड अटैच हो गया पूरा। आपने देखा ये पॉजिटिव साइन रिमूव हो गया। क्यों? क्योंकि इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए और ऑक्सीजन के ऊपर अब पॉजिटिव साइन लग जाएगा। क्यों पॉजिटिव लगेगा? क्योंकि इसने अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए कार्बन को। इसके पास सिर्फ अब एक लोन पेयर बचा, पहले यहाँ पे 2 थे, एक इसने कार्बन के साथ जॉइन कर लिए। ये जो लोन पेयर है ये बॉन्ड बन गया है और एक इसके पास ऐसे ही रह गया। सो ये हमारा सेकेंड पॉइंट था, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन। फर्स्ट पॉइंट इज प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू गिव कार्बोकेटाइन एंड द सेकेंड वन इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन। अपना थर्ड वन इज deprotonation of hydrogen, deprotonation of hydrogen। ये हमारा बना हुआ था कंपाउंड। अब इसमें डीप्रोटोनेशन करेंगे। प्रोटोनेशन में हमने एडिशन किया था हाइड्रोजन का, बट डीप्रोटोनेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन विल टेक प्लेस। अब जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो क्या बनेगा? CH, यहाँ पे भी डबल H, ये 2 H अटैच हो गए। एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, सिर्फ ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर आ जाएगा। तो ये रिमूव होगा, H पॉजिटिव बनाएगा, सिर्फ H पॉजिटिव निकलेगा क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसके लोन पेयर ले लेगा। यह अकेला सिर्फ H पॉजिटिव आयन की तरफ चला जाएगा और यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा, OH, या आप इधर ऐसे OH कर दीजिए। सो नाउ वी गेट इथेनॉल, हमें इथेनॉल मिल गया और H पॉजिटिव ऐसे ही रिमूव हो गया जो कि हमने पहले केस में लिया था। हमने वाटर में H पॉजिटिव ऐड किया था तो H3O पॉजिटिव बना, H3O पॉजिटिव मिल गया। अब इन द सेम वे ये H पॉजिटिव जो हमने पहले ऐड किया था वो अब रिमूव हो गया एज H पॉजिटिव आयन। तो ये हमारी कंप्लीट 3 प्रोसेस में मैकेनिज्म हो गया। फर्स्ट प्रोसेस था हमारा, व्हाट इज फर्स्ट प्रोसेस? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन to form carbocation. Second is nucleophilic attack of water on carbocation, nucleophilic attack हुआ। and third is deprotonation of hydrogen, और हाइड्रोजन रिमूव हो गया और H पॉजिटिव आयन जो हमने पहले यूज़ किया था वो एज इट इज हमें मिल गया। ओके, दिस इज ऑल। हमारा सेकेंड मैथड इज बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या टेक करते हैं हम लोग? वहाँ पे हम बोरोन लेते हैं। व्हाट इज बोरोन? B2H6। यहाँ पे हमने कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस में एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन जो हमने अभी डिस्कस किया उसमें सिमेट्रिकल एल्कीन था, बट यहाँ पे हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन से करते हैं। हियर वी टेक अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम बोरोन के एडिशन करेंगे। अनसिमेट्रिकल एल्कीन इसमें बोरोन ऐड करेंगे B2H6। फॉर योर कन्वीनियंस अगर हम B2H6 को ऐसे ना लिख के BH3 का होल टाइस लिखे तो भी हमने B2H6 लिखा है, मल्टीप्लाई होके वो हमें B2H6 ही देगा। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करके
H ऐसे अटैच किया और यहाँ पे BH2 लिख दिया। अभी भी हमने सिर्फ बोरोन नहीं लिखा है, यहाँ पे BH3 है, सो ये हमने ऐसे बोरोन लिखा फॉर कन्वीनियंस, आगे भी पता चलेगा क्यों ऐसे लिखा। और ये हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। जब उसमें हाइड्रोबोरेशन होगा, हाइड्रोबोरेशन बोरेशन में ही दिखा हुआ है, बोरेन लेना है हमें, दिस इज बोरेन, वो क्या देगा हमें, ये जो होगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकोव रूल दैट वी हैव डिस्कस इन क्लास 11, एंटी मार्कोवनिकोव रूल। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन में हमने मार्कोवनिकोव लगाया था कि नेगेटिव पार्ट इज अटैच टू दैट साइड। यहाँ पे ये नेगेटिव पार्ट है, यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकोव रूल से एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन में हमने डिस्कस किया था कि हमने मार्कोवनिकोव रूल लगाया था दैट नेगेटिव पार्ट अटैच टू दैट साइड वेयर देयर इज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बट यहाँ पे एंटी मार्कोवनिकोव लगाएंगे, जस्ट अपोजिट ऑफ मार्कोवनिकोव रूल, मीन्स नेगेटिव पार्ट अटैच टू दैट कार्बन वेयर इज ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब ये नेगेटिव पार्ट है, वो किस साइड अटैच होगा ये हमें देखना है, इस साइड अटैच होगा या इस साइड अटैच होगा। या आप भी गेस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस साइड है, तो नेगेटिव पार्ट अटैच होगा मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकोव रूल। तो यहाँ पे हम BH2 अटैच कर देंगे। सो व्हाट वी गेट, CH3 CH2, क्यों लिखा 2, H यहाँ चला जाएगा, BH2 यहाँ चला जाएगा, CH2 एंड BH2। अंडरस्टूड कैसे हमने किया, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकोव रूल। अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी प्रेजेंस में हम जो है फिर से बना दिए CH3 CH2 CH2, एक लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, अब सिर्फ हाइड्रोजन रिमूव होके एक हाइड्रोजन रहेगा। अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हमने अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया था, अभी एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, फिर अगेन लगाया, अब ये भी हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा एंड वी गेट CH3 CH2 CH2 और जो BH2 अटैच हुआ था, यहाँ पर अटैच हुआ था कार्बन के पास, वो अब सिर्फ B रह गया। सो पहले क्या किया हमने, अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया, हाइड्रोबोरेशन किया, वी अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकोव रूल BH2 यहाँ अटैच हो गया और हाइड्रोजन यहाँ अटैच हुआ, फिर से अनसिमेट्रिकल अल्कीन डाला हमने, ये H रिमूव हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, दिस विल बिकम 2 टाइम्स, एक ये और एक ये, आप ऐसे गेस कर सकते हैं, दो अनसिमेट्रिकल अल्कीन, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव, अगेन हमने डाला तो यहाँ पे 3 हो गया और ये सिर्फ एक ही रहा B, और एक हाइड्रोजन जो बचा था वो भी रिमूव हो गया। अब यहाँ से आगे क्या है, यहाँ पे मैं कर रही हूँ, आप देख लीजिए, CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस एंड BSA in the presence of hydroxy H2O2, what we get, CH3 CH2 CH2OH। इस कंपाउंड का हमें तुरंत अल्कोहल मिल जाएगा। दिस इज़ द बेस्ट वे फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ये हमारा एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन से नहीं हो पाता बिकॉज वह लेंदी प्रोसेस होता, अनसिमेट्रिकल अल्कीन से ना हो पाता। बट अगर हमें अनसिमेट्रिकल अल्कीन दिया है और वी हैव टू प्रिपेयर अल्कोहल, सो दिस इज़ द बेस्ट मेथड, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बोरेन लेंगे, हमें बोरेन लेंगे, BH2 अटैच हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकोव रूल। अगेन वी हैव टेक अनसिमेट्रिकल अल्कीन, देन ऑल्सो 1B अटैच हो जाएगा, 2H रिमूव हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे सिर्फ सिंगल H बचेगा, अगेन रिमूव हो जाएगा हमारा H और यहाँ पे सिर्फ सिंगल B बचेगा। फिर वहाँ से प्रोसेस है कि हमने 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के प्रेजेंस में और H2 के प्रेजेंस में और H2O की प्रेजेंस में, हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 इसे बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड
एंड वाटर के प्रेजेंस में हमको अल्कोहल मिल जाएगा. दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. वन इज फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. कार्बोनिल कंपाउंड की जब हम बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड. उसकी रिडक्शन से हम कैसे अल्कोहल बना सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे अभी. फर्स्ट ऑफ ऑल रिडक्शन की बात की है तो ऐसा कोई रिएजेंट होगा जो रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड को, कीटोन को या कार्बोक्सिलिक एसिड को. इनको रिड्यूस करने के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो हम लिस्ट कर देते हैं यहाँ पे. फर्स्ट इज हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम. सेकेंड इज सोडियम बोरोहाइड्राइड. थर्ड वन इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव और ये डायरेक्ट रिड्यूस कर देगा, डायरेक्टली रिड्यूस कर देगा एल्डिहाइड टू अल्कोहल. इन सब से यूज़ करने में क्या हमारा वो रहेगा, डिसएडवांटेज रहेगा कि हमने अगर एल्डिहाइड लिया और इनके प्रेजेंस में हम रिड्यूस कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कीटोन में जाएगा. फिर और सॉरी, अगर एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक लिया हमने, कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ दिस और सोडियम बोरोहाइड्राइड. सो व्हाट विल हैपन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कीटोन में जाएगा रिड्यूस होके, फिर उसको हमको और रिड्यूस करना पड़ेगा तो वो एल्डिहाइड में जाएगा. देन अगेन व्हेन वी रिड्यूस देन वी गेट अल्कोहल. बट इफ़ वी यूज़ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दिस इज़ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज़ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. और अगर हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर दिया, वी डायरेक्टली गेट अल्कोहल. हमें इन ये कंपाउंड्स नहीं मिलेंगे. बट अगर हमें अपने इंटरमीडिएट प्रोसेस में एल्डिहाइड और कीटोन के प्रेजेंस चाहिए तो हम इन सबको यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज़ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. और अदर टूल्स आर ऑल्सो गुड बट देन वी हैव टू टेक सीरीज ऑफ स्टेप्स. So these are the reducing agent for the reduction of alcohol. The one again is alcohol C2H5OH in the presence of water or sodium metal in the presence of metal. ठीक है, तो ये हमारा इथेनॉल हो गया. In the presence of metal we can easily reduce these compounds to get alcohol. So now discuss. First we take aldehyde, that is RCHO. अगर हमने उसको हमने रिड्यूस किया हाइड्रोजन के प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और निकल. फर्स्ट वी टेक एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन और रिड्यूस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और निकल. सो वी गेट इजीली. यहाँ पे एक आर था, ये आर क्या है, यू ऑल नो दिस इज एल्काइल ग्रुप. ये अल्काइल ग्रुप है R. देन अगेन वन कार्बन CH2 हो गया और ये OH. ये ईजिली अल्कोहल मिल जाएगा. ये हमारा एल्डिहाइड से. और अगर हमने RCHO लिया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस करवाया सोडियम बोरोहाइड्राइड, सो वी गेट R. ये वन कार्बन CH2OH. So you can see that it is very simple method. Only we have to take reagent और हम एल्डिहाइड से अल्कोहल में चले जाएंगे, कीटोन से अल्कोहल में आ जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी अल्कोहल में चले जाएंगे easily. They are interconvertible. How? By using the reducing agent. आप सोच रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड से हम अल्कोहल में जा रहे हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक से अल्कोहल, कीटोन से अल्कोहल और एल्डिहाइड से अल्कोहल. बट अगर हमें अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कीटोन, कीटोन से कार्बोक्सिलिक आना है, मतलब कि यहाँ पे एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की, तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे इन स्पाइट ऑफ यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट. यहाँ पे हम ऑक्सीजन कम कर रहे हैं तो हम अल्कोहल तक जा रहे हैं, तब हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं. बट अगर हम अल्कोहल से बढ़ेंगे एल्डिहाइड की तरफ, एल्डिहाइड से कीटोन, देन वी यूज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ. अगर हम इस साइड जा रहे हैं
ऐसे, तो रिड्यूसिंग एजेंट। बट अगर हम उल्टा गए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ करना पड़ेगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं ऐसे इसी तरह। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। और अगर हमने कार्बोक्सिलिक ले लिया, अब आप देखेंगे अंदर कार्बोक्सिलिक अगर हमने सोडियम बोरोहाइड्रेट के प्रेजेंस में डाला तो हमें मिलेगा कीटोन आर सी ओ आर, ये हमें कीटोन मिलेगा। अगर हमने एल्डिहाइड डाला, एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो कीटोन मिलेगा, या हमें एल्डिहाइड भी मिल सकता है, दोनों में से कोई भी मिल सकता है। ज़रूरी नहीं कि जो क्या हम कीटोन से एल्डिहाइड पे जाएं, इतना भी लीस नहीं है। बट अगर हमने डाला सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो कार्बोक्सिलिक से डायरेक्ट अल्कोहल नहीं जाएगा, ये एल्डिहाइड जाएगा। फिर अगेन उसकी हम रिडक्शन कराएंगे। अगेन अगर हमने कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया तब जाके हमें अल्कोहल मिलेगा। बट अगर यहीं पे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देते द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमें डायरेक्टली अल्कोहल मिल जाता, हम एंड वी गेट इथेनॉल। ये सीरीज हमें नापना नहीं पड़ती, बट हमने लीस्ट एजेंट डाला है, दैट्स वाई वी हैव टू अगेन टेक रिड्यूसिंग एजेंट, देन वी गेट अल्कोहल। अंडरस्टूड? नाउ थर्ड मेथड इज फ्रॉम Grignard reagent. Then how we can prepare alcohol from Grignard reagent? Grignard reagent is RMgX, where R is alkyl group and X is any type of halogen, that is fluorine, chlorine, bromine. फ्लोरीन जल्दी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, दैट्स वाई वी टेक क्लोरीन एंड ब्रोमीन। और आयोडीन के केस में हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अप्लाई ज़्यादा करनी पड़ती है, देयरफॉर और दिस ऑल्सो वी निगलेक्ट और वी टेक क्लोरीन एंड ब्रोमीन। सो फ्रॉम Grignard reagent हाउ वी कैन प्रिपेयर अल्कोहल? नाउ लेट्स सी, हियर वी टेक Grignard reagents in the presence of, suppose there is aldehyde or ketone, anything you can take. You can take ketone also, or you can take aldehyde also. So therefore I have taken this 2 sign. Here you can attach anything. अगर आपने यहाँ पे H अटैच कर दिया, यहाँ पे R, तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। यहाँ पे अगर दोनों साइड आ रहे हैं तो ये हमारा कीटोन हो जाएगा। सो यहाँ पे हम कुछ भी कार्बोनिल कंपाउंड ले सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड ले सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Grignard reagent R-MgX। ये हमारा अल्काइल ग्रुप है, कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। इनकी प्रेजेंस में जब हम कार्बोनिल कंपाउंड को Grignard reagent के प्रेजेंस में जब हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे, देन वी गेट व्हाट? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ध्यान सुनिएगा यहाँ पे कैसे अटैचमेंट होगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है बिकॉज उसके पास 2 लोन पेयर हैं, ये बॉन्ड अपनी तरफ खींचेगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, जिसके कारण ये नेगेटिव हो जाएगा। इतना समझ में आया? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे मैग्नीशियम आपने पढ़ा, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, दे आर वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा अपने आप से और ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। तो R नेगेटिव होगा और नेगेटिव पॉजिटिव की तरह अटैच करता है, यू ऑल नो, पॉजिटिव नेगेटिव की तरह जाएगा। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड, यहाँ पे R C के पास जाएगा, वाई R C के पास जाएगा, R डैश, वाई बिकॉज ये नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पे एक साइन, देन O नेगेटिव था इसलिए यहाँ पे MgX जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं। सो दिस इज आर व्हाट वी कॉल एडक्ट, इसे हम एडक्ट बोलते हैं। हेयर इन द प्रेजेंस ऑफ Grignard reagent अल्कोहल लेंगे हम, एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड और कार्बोनिल कंपाउंड लिया, Grignard reagent के प्रेजेंस में ऐड करवाया, तो वी गेट एडक्ट, हमें एडक्ट मिल जाएगा। दिस व्हाट वी कॉल दिस एडक्ट। फिर उसके बाद हमने अगर हाइड्रोलिसिस कर दी H2O, हाइड्रोलिसिस कर दी H2O पॉजिटिव,
या वाटर, तो क्या होगा? वाटर क्या होता है? अगर हम तोड़ के लिखे वाटर को तो क्या लिखेंगे? H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। ये H पॉजिटिव O के पास चला जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से। अब ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट करेगा, इस साइड H अटैच हो जाएगा और इस साइड OH अटैच हो जाएगा। अब आप देखते हैं कैसे बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और व्हाट वी गेट, C यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होने के बाद H यहाँ अटैच होगा, सॉरी OH यहाँ अटैच होगा। ये क्या हो गया? एल्कोहल, बन गया एल्कोहल। और यहाँ पे जो बाकी अदर प्रोडक्ट होगा तो वो हो जाएगा Mg, O के साथ H अटैच हो जाएगा तो OH एंड X। ये हमारा एडिशनल प्रोडक्ट है, बट मेन प्रोडक्ट जो हमें चाहिए था वो एल्कोहल था, जो कि हमें मिल चुका है बाय हाइड्रोलिसिस, वाटर से एडिशन करवाने के बाद। सो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रीजन? दिस इज अ ग्रिग्नार्ड रीजन। हम अगर एल्डिहाइड और कीटोन को ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन करवाएंगे, देन वी गेट एडेक्ट। यहाँ पे नेगेटिव एल्काइल ग्रुप होगा जो कि कार्बन से अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन से पॉजिटिव पर अटैच होगा और एडेक्ट फॉर्म हो जाएगा। देन इन द एंड हाइड्रोलिसिस कर देंगे, वी गेट ईजिली एल्कोहल और हमें एल्कोहल मिल जाएगा और बाकी प्रोडक्ट अदर प्रोडक्ट ऐसे ही रहेगा। दिस इज द थर्ड मैथड हाउ वी प्रिपेयर एल्कोहल। सो इट्स कंप्लीट।